नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहा नगरजनों ने दिया मामलतदार को आवेदन पत्र। कहा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोही में उत्तर रेलवे के परसीपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित 26 जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से बुधवार की दोपहर रेलवे पटरी के करीब मिट्टी में दबाकर रखा गया रेलवे पटरी पर लगाए जाने वाले उपकरण भारी मात्रा में पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके पहले लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक कबाड़ी एवं आधा दर्जन उसके सहयोगी नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में लिया, जो चोरी कर सामान कबाड़ी में बेच देते थे। हम नहीं, आपने हमारे कॉलर पर हाथ क्यों लगाया है? हमने परिचय दिया। आपने मुझे हमसे आपको पूछना चाहिए ना कि आप मेरे कॉलर पर हाथ लगाएंगे। आप मेरे कॉलर पर हाथ क्यों लगाए? कॉलर कोई नहीं लगाया। आप लगाए हैं, आप लगाए हैं, आपने जब ब्लेम आप लगाए हैं, आपने जब ब्लेम और यहाँ सबूत है आपके सामने कॉलर पर हाथ लगाए हैं। दुबे, ग्राम जगदीशपुर। ये अपने पत्रकार भाई साहब आए थे, इनके द्वारा जो है ये आरपीएफ के मनोज कुमार जी हैं, वो जो है हाथापाई किए और कॉलर पकड़े हैं और मोबाइल छीन करके पटकना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने बचा लिया। भदोही से सीनू संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के सावली गांव में कुदरती हाजत के लिए गए हुए युवाओं को सांप काटने से उसकी मौत हो गई। ये घटना के बाद गांव के ही व्यक्ति ने स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से युवाओं की मौत होने का आरोप के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया है, जिसका विरोध करते हुए सावली गांव के नगरजनों द्वारा तिलकवाड़ा मामलतदार को आवेदन पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। सावली गामना રહેવાસી એવા તડવી મુકેશભાઈ સનાભાઈ અવારનવાર સાવલી ગામમાં અશાંતિ થાય, ગામનું વાતાવરણ દોડાય એ માટે અવારનવાર એક સમાજને બીજા સમાજ પ્રત્યે ઉશ્કેરણી કરી ખોટી ખોટી ફરિયાદો અપાવતા આવેલા છે અને આવી જ ફરિયાદો અપાવવામાં તેઓ માહિર હોય અને જેમાં તેઓ ખુલ્લા પડી ગયેલા હોય, સરકારે તેઓને તડીપાર કરેલા છે। તેમ છતાં તડીપાર હોવા છતાં બહારથી પણ બેઠા બેઠા તેઓ ગામમાં શાંતિ દોડાય, એકબીજા સમાજ વચ્ચે દુશ્મની થાય તેવું કૃત્ય કરતા હોય અને એના ફળ સ્વરૂપે ગામમાં જ એક છોકરો જે મરણ ગયો હતો તેની મરનારની પણ એ ના રાખી અને એના રાજનૈતિક લાભ લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને ખોટું આવેદન આપી ગામની છાપ નર્મદા જિલ્લાની છાપ ખોટી પાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ખરેખર ગામમાં આવી કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં। ગામમાં સમયસર પાણી લાઇટની વ્યવસ્થા મળી રહી છે, ગામના દરેક વ્યક્તિને એનો લાભ મળે છે। તેમ છતાં ખોટી રીતે આવેદન આપીને ગામને અપમાન કરવાનું, કોઈ ગામના લોકોને એકબીજા સાથે દુશ્મની પૂરવાનું કૃત્ય કરતા હોય, તડીપાર કરવા છતાં સુધરતા ના હોય, ત્યાં આવા લોકો વિરુદ્ધ કાયદાની કડકમાં કડક જોગવાઈ હેઠળ શિક્ષાત્મક પગલાં લે સરકાર, એવું આજરોજ અમે તિલકવાડા મામલતદાર સાહેબશ્રીને આવેદન આપેલ છે। આ આવેદન ઉપર યોગ્ય કાર્યવાહી થાય એવી સરકારની પાસે અમારી માંગ છે। શ્રેયસ પરમાર, સાવલી, તાલુકો તિલકવાડા, જિલ્લો નર્મદા। તડવી મુકેશભાઈ સનાભાઈ તેઓ સમાજને બદનામ કરવાનું અને એકબીજાને ખોટી રીતે હેરાન કરી ફરિયાદો કરાવી, ઝઘડાતંત્ર કરાવી સમાજના લોકોને હેરાન કરવાના અને ખોટી રીતે વકીલના નામા લઈ અને સમાજને છેતરપિંડી કરે છે, ખોટી રીતે લોકોને બદનામ કરે છે અને સરપંચશ્રીને પણ ખોટી રીતે બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય એવા ખોટા કૃત્ય કરતા માણસોને સરકારશ્રી પાસે મારી એવી માંગ છે કે એને કડકમાં કડક સજા કરે એવી મારી અપેક્ષા છે। આપનું નામ? બિલ રાકેશભાઈ નારાયણ। પોતાના ભૂતકાળના કરેલા ગુનાઓ અને પોતાના ભૂતકાળના કરેલા કુકર્મ છુપાવવા માટે બની બેઠેલા આદિવાસી નેતા અને બનાવટી વકીલ એવા સાવલી ગામના રહેવાસી મુકેશભાઈ સનાભાઈ તડવી મારફતે સાવલી ગામમાં આદિવાસી સમાજના લોકોને અંદરો અંદર લડાવવાનું કામ, આદિવાસી સમાજના લોકો ઉપર ખોટી ફરિયાદો અપાવવાનું કામ તેમજ એસસી સમાજના લોકો ઉપર ફરિયાદીઓ કરાવવાનું કામ, અન્ય સમાજના લોકો ઉપર ખોટી એટ્રોસિટી તેમજ બળાત્કારની ફરિયાદીઓ કરાવવાનું કામ, આ કામો કરાવવાના તેમના પ્રયત્નોને લીધે અને આ કામોને લીધે સરકારશ્રી દ્વારા તેઓશ્રીને તડીપાર કરવામાં આવ્યા છે
અને તડીપાર કરવામાં આવેલ હોવા છતાં પણ ગામમાં સાપ કરડવાની ઘટના તારીખ 4/5/2022ના રોજ બની, જે સમય દરમિયાન ગામની અંદર ગામની સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલુ હતી, તેમ છતાં પંચાયતને બદનામ કરવા पंचायतना सरपंच पासे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। लंबे प्रयास के बाद आखिर आज रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कोसली रेलवे स्टेशन से गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से कोसली वासियों के लिए अब देश की राजधानी दिल्ली का सफर काफी सुगम हो जाएगा। इस ट्रेन के चलने से कोसली वासियों में खुशी का माहौल है। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कल छाता तहसील के गांव बेठन कला के बाथरूम के टैंक में जहरीली गैस से दुखद हृदय विदारक घटना में मृतक ऋतिक वाल्मीकि के अंतिम विदाई में गांव पहुंचकर परिवारीजनों को सांत्वना देने पहुंचे अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश वाल्मीकि, साथ ही ऋतिक के पिता सुरेंद्र वाल्मीकि जो अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। अकलेरा में द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस का राजस्थान नर्सेज यूनियन झालवाड़ा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकलेरा पर आयोजन किया गया। नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मीना ने बताया कि कार्यक्रम में समस्त जिला नर्सेज और ब्लॉक अकलेरा नर्सेज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को नर्सेज दिवस के रूप में मनाया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। यूपी सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो जनता से जुड़ी योजनाएं थी उसे धरातल पर पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए मंत्रियों का समूह जनपद में गया था। ये जनता ने पहली बार महसूस किया कि जनता के द्वार सरकार, जबकि पहले सरकार के पास जनता को जाना पड़ता था। मंत्रियों के समूह का जनता के बीच जाना सार्थक रहा। आगे योजना बनाएंगे। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, डीजीपी को भी कल जो है और कार्रवाई हुई, तो क्या ये माना जाए कि जो योगी सरकार की योजनाएं हैं, अगर उनको जैसे आप लोग की जो रिपोर्ट्स गई हैं उनमें अगर प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं से दोषी पाए जा रहे हैं कि अगर वो सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं उन योजनाओं को, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारियों पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में योगी जी के जो इच्छा के अनुरूप जो कार्य जो उन्होंने जन समस्याओं के लेकर के जो उन्होंने बताया है, उस पर कोई भी खरा नहीं उतरेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे अधिकारी हो, सब पर समान रूप से वो उनका एक दृष्टिकोण है। वो सबके लिए एक तरह की सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज उन्होंने स्थापित किया है और इसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन कोई यदि गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। जी, अगर हम बात ज्ञानवापी मामले की अगर हम करें तो आज उस पर सुनवाई भी होना है, लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा था और एक पक्ष द्वारा लगातार उसका विरोध किया जा रहा था, तो इस ज्ञानवापी के सर्वे को रोकने के इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना है आप? देखिए, सच्चाई कोई रोक नहीं सकता है। जो है सच्चाई जो है, जिसके लिए 500 वर्षों के लिए हम लोग संघर्ष करते थे, और राम मंदिर भी हम ही लोग के जीवन काल में बन करके भव्य बन रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, सच्चाई सामने आएगी और उस पर माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार उसको अमल करेगी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश स्तरीय माफिया अपराधी रिजवान जहीर की करीब 3 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। बलरामपुर तुलसीपुर के बहुचर्चित हत्याकांड फिरोज उर्फ पप्पू हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जहां जमानत नहीं मिल रही है, वहीं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने करीब 3 करोड़ 26 लाख 63,779 रुपए की अनुमानित संपत्ति जब्त की है। कुर्की में मकान व उसमें मौजूद सामान की कुर्की की गई है। आज दिनांक 12/5/2022 को कुख्यात गैंगस्टर रिजवान जहीर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों में से जनपद बलरामपुर में अर्जित भूखंड, कोठी में सामान तथा स्टेट बैंक तुलसीपुर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक तुलसीपुर के खाते जब्त किए गए। जब्त की गई संपत्ति लगभग 4 करोड़ की है। जब्ती की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है।
बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मथुरा बाजार तुलसीपुर में समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक सभा में महाराष्ट्र व नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तुलना रावण से करते हुए बुधवार को कहा कि उत्तर भारतीयों पर जितना अत्याचार राज ठाकरे ने किया है उतना तो रावण ने भी किसी पर नहीं किया। कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं है। मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से और सभी सरकारों से कि जो आदमी समाज को बांटने का, भड़काने का निर्णय करता हो कोई सा आह्वान का, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी छीनो। हाँ, सिक्योरिटी देना ये लोग बंद करें तो गलत बयानबाजी बंद हो जाएगी। लेकिन अपने कैपेसिटी पर बयान दो, अपने कैपेसिटी पर सुरक्षा करो। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में बना हुआ है। मामला अस्पताल का है जहां अधिकांश डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय सांसद विजय कुमार के निरीक्षण में गायब डॉक्टरों पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की बात कही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि प्रभारी और कुछ डॉक्टरों के साथ तू मैं हुई थी, जो कि मामला थाने तक पहुँच गया। वहीं केंद्र प्रभारी शबीबुल हक ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया था कि मनमानी ड्यूटी करते हैं। साथ ही प्रकरण में संलिप्त डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि प्रभारी के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। जी सर, आपने आज यहाँ दौरा किया सर बाराचट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सर क्या वजह है? इसमें वजह है कि जो डॉक्टर हैं यहाँ, 2 डॉक्टर MBBS हैं और एक डेंटल डॉक्टर है और एक आयुष के डॉक्टर हैं, जो कि अभी पटना में शायद इलाज हैं, ताकि हमको सूचना मिली। तो डॉक्टर की कमी तो है, लेकिन जो भी एक डॉक्टर हैं वो भी लगातार नहीं आ रहे हैं। माननीय MP साहब के द्वारा भी जो हमको सूचना मिली, उन्होंने तय किया है। बीच में भी मैं आया था इसको सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी कोई खास परिवर्तन डॉक्टर लोग पर बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है। लोग चूँकि यहाँ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रहते ही नहीं है, बाहर से आते जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है उनका अटेंडेंस काटा गया है, सारा महीना दिन का अटेंडेंस काटा गया है। आज इसीलिए माननीय MP साहब के आग्रह पर आप भी आइए, हम भी आए, दोनों आदमी मिल के देखें कुछ समस्या का निदान हो सके। तो हम लोग समस्या के निदान के लिए आए और जो भी डॉक्टर की कमी सब जगह हो रही है, हम लोग इसको डॉक्टर विभाग को लिखेंगे। डॉक्टर तो क्या सर आज के बाद क्या इस हॉस्पिटल में सुधार होने की संभावना है कि पूरे के बाद फिर उसी तरह से? सुधार क्या है, जो एक ही डॉक्टर हैं अभी आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी, उनसे बात करके देखते हैं कि क्या हुआ। सर एक सरकार जो है डॉक्टर की पदस्थापना सरकार से संबंधित है। सर आज पुनः आज बाराचट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किए हैं सर, क्या था? हाँ, हम लोग पूरे जिला में स्वास्थ्य उपकेंद्र और सभी योजनाएं को हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जहाँ पर कोई त्रुटि मिले तो उसको करिए पदाधिकारी को सुधार करने के लिए हम लोग निर्देश सुझाव देते। हाँ सर, इसी आलोक में हम लोग आज बैठक करें जो छोटी मोटी त्रुटि है उसको हम दूर करने पड़ेगा। सर पिछले दिनों भी आपने दौरा किया था, उसके बाद सर जो प्रॉब्लम पहले था, समस्या था, वही समस्या का समाधान नहीं हुआ सर? उसमें जिस दिन हम आए थे उस दिन एक्सीडेंटल केस में आए थे, जो परिवार को उसको देखने के लिए आए थे और उसी में जो एब्सेंट थे उस पर अटेंडेंस काटा गया। और जो डॉक्टरों की अनुपस्थिति रहती है यहाँ लगातार सर, उस पर क्या करना? डॉक्टर लोग जो कहीं इलाज रहते हैं या और कुछ नहीं तो उसका कहीं तो कारण रहता है, तो कंसिडर किया जाता है। प्रभारी 24 घंटा यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ प्रभारी ही रहते हैं, इसके अलावा हम लोग को नज़र नहीं आते हैं कोई डॉक्टर साहब, ताकि जब भी हम लोग आते हैं उसी को देख रहे हैं हम। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गई है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा अधिवक्ताओं की एक बैठक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभागार में बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य कल अधिवक्ता एवं जिलाधिकारी के बीच में नोकझोंक पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से जिलाधिकारी को जनपद मिर्जापुर से हटाने की मांग की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जटाधर द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सिंह व सचिव राम सागर सरोज के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कचहरी से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल भ्रमण कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष जटाधर द्विवेदी ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी को मिर्जापुर से हटाया नहीं जाएगा तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। हमारे सदस्य श्री श्याम सुंदर शुक्ला जी के बात में हमारे जिलाधिकारी महोदय से कुछ वार्ता के दौरान कुछ विवाद हो गया था, जिसको उन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे बार में दिया। उसको संज्ञान में लेकर हमने आज 10 बजे अपने मीटिंग हॉल में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सारे सदस्यों की बात सुनकर यह निर्णय लिया गया कि ये जिलाधिकारी महोदय इसी तरह से कई बार वकीलों के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं और जब से ये मिर्ज़ापुर जनपद में आए हैं तब से घूसखोरी और राजस्व कर्मचारियों द्वारा वकीलों को परेशान किया जाना व्यवहार में बन गया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की मांग है कि जिलाधिकारी महोदय तत्काल यहाँ से हटाए जाएं और अगर इस हटाए नहीं जाते हैं तो हम लोग तब तक हड़ताल करते रहेंगे, इनका विरोध करते रहेंगे जब तक कि इनकी यहाँ से इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। इस बाबत सभी प्रतिनिधियों को मैं आज ही पत्र लिखूंगा और उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि वे लोग हमारे संघर्ष में अपनी भूमिका को हमारे साथ रहें और इनका स्थानांतरण। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।